اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا علم جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ سب سے پہلا علم اپنے خالق، مالک، رازق کی معرفت ہے۔ پہچاننا چاہیے کہ کون ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جب اس کی پہچان ہو جائے گی تو فرمایا آخر العلم، اور جب علم حاصل کر لیا آخری علم کا درجہ یہ ہے کہ تفویض الامر الیہ، پھر یہ انسان اپنے تمام امور اس خالق کے سپرد کر دیتا ہے کہ میرے امور جانے، میرے یہ کام جانے اور میرا خالق جانے۔ تو عزیزان محترم، میرے واجب الاحترام، آج کا جو مباحثہ ہے ہمارا وہ علم صرف کی سب سے ابتدائی، سب سے پہلی کتاب، جو کتاب کے نام پہ ہے لیکن 2-3 صفحات پر مشتمل ہے، کتاب الامثلہ، اسی میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کتاب شرح امثلہ میں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو صرف کی چند کتابوں میں ہمارا مباحثہ ہوگا۔ یہ علوم، علم صرف ہو، علم نحو ہو، علم اصول ہو، علم منطق ہو، علم لغت ہو، جتنے بھی یہ علوم مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، جتنے بھی یہ علوم حوزات علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، جتنے بھی یہ علوم جس جگہ پر یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے یہ علوم پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کو سمجھ سکے۔ یہ سارے علوم مقدمہ ہیں، علم نحو مقدمہ ہے، علم صرف مقدمہ ہے، یہ باقی علوم، علم منطق، علم فلسفہ، علم اصول، یہ سارے مقدمات ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، مقدمات ہیں سمجھنے کے لیے احادیث پیغمبر خدا کو۔ اور آج جس کا ہم مباحثہ کرنے جا رہے ہیں وہ علم صرف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ علم صرف یہ ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ علم صرف ہی ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے، یہ علم صرف ہی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ علم صرف کا لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف کا پھیرنا، ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، دوسری جگہ سے اٹھا کے پہلی جگہ پہ رکھ دینا۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا۔ اور جب ہم نحو میں اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ صرف کا مطلب کیا ہے، صرف کا مطلب پھر اصطلاح میں یہ بنتا ہے کہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، اسی ایک صیغہ کو مختلف حالتوں میں پھیرا جاتا ہے تاکہ اس کے مختلف معانی حاصل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے درس، دال را سین، ایک ہی لفظ ہے جس کے 3 وہ ہیں ورڈز ہیں، اور ایک لفظ مجموعہ ہے دال را سین درس۔ اسی درس کو ہم مختلف حالتوں کی طرف جب لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے صرف درس، ایک اسی کو جب اس میں فعل کے صیغے میں لے جاتے ہیں، مدرس میں لے جاتے ہیں تو وہ مدرس بن جاتا ہے، یعنی جو درس دے رہا ہو۔ اسی کو جب ہم اس میں مکانوں کی طرف لے جاتے ہیں تو مدرس بن جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر درس پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی لفظ درس کو دارس کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کا اور معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ ہے، اسی لفظ کو مختلف حالتوں میں پھیرتے ہیں، مختلف معانی اس میں سے حاصل ہوتے ہیں۔
اور وہ مختلف لفظ کا مادہ ایک ہوتا ہے، وہی ایک مادے والا لفظ جب مختلف جگہ پر مختلف مادوں میں استعمال ہوتا ہے تو علم صرف کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر یہ اسم فاعل ہے، یہاں پر اسم مفعول ہے، کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا اس کے اگر ہم دیکھیں دوسری مثال لے لیں، یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہماری یہ ابتدائی کلاس ہے، ابتدائی مباحثہ ہے، اور جو بچہ پہلے دن ہی علم صرف پڑھ رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کو ایسی مثالیں دے کر سمجھایا جائے کہ وہ اس کے ذہن میں بات آ جائے۔ مثلا لفظ علم ہے، لفظ علم مجموعہ ہے عین، لام اور میم کا، اور جب لفظ علم کو ہم مختلف حالتوں میں دیکھتے ہیں تو اب اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ پہلے علم تھا، اسی علم سے عین لام میم مادہ ہے اس کا، اسی علم کو ہم لے جاتے ہیں کس کی طرف؟ عالم کی طرف، تو مطلب بن جائے گا، معنی اور ہو جائے گا کہ وہ جو جاننے والا ہے۔ معلم مادہ وہی ہے عین لام میم، یعنی جو تعلیم دے رہا ہے۔ اچھا، معلوم وہ جس چیز کا علم آپ کو ہے، یعنی مختلف حالتوں میں یہ ہمیں کون سی چیز بتائے گی کہ اس کو مختلف حالتوں میں لے جائیں گے تو کس طرح لے جائیں گے، یہ ہمیں علم صرف ہی بتائے گا۔ تو علم صرف بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، احادیث پیغمبر کو سمجھنے کے لیے، فرامین معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے علم صرف ہی ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ علم نحو ہمیں فائدہ دیتا ہے، علم منطق ہمیں فائدہ دیتا ہے، علم اصول ہمیں فائدہ دیتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح علم صرف کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اور اسی علم صرف میں پہلے زمانے میں بھی ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ کتابیں تھیں، آج کے زمانے میں مختصر کرتے گئے ہیں، اور پہلے تو صرف بہائی بھی اس میں پڑھائی جاتی تھی۔ ابھی جو جامع المقدمات 2 جلدوں میں موجود ہے ہمارے پاس، وہ جلد اول جو ہمارے سامنے ہے اور جلد ثانی، اس میں جو پہلی کتاب علم صرف پر لکھی گئی ہے وہ کتاب الامثلہ لکھی گئی ہے، جبکہ پہلے صرف بہائی، آیت اللہ بہائی کی صرف کی کتاب، وہ بھی بالکل مختصر اور چھوٹی سی تھی، وہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ابھی جو ہے وہ پہلی کتاب امثلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب انشاءاللہ یہ 2-3 مباحثوں کے بعد ہم شروع کریں گے، وہ کتاب شرح امثلہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صرف میر ہے، پھر اس کے بعد تصریف، اس طرح صرف کی مختلف کتابیں ہیں۔ زیادہ دیر زحمت نہ دوں آپ لوگوں کو کہ یہ ہمارا مباحثہ کرنے کا مقصد اور غرض و غایت، اور جس طرح برادر محترم غلام اصغر خان صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ طلبہ کرام آج کے زمانے میں دیکھا جائے پاکستان میں یا دوسرے اردو جاننے والے جہاں پر بھی رہتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر مصروفیات اتنی آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ مسلسل بیٹھ کر ایک جگہ پہ وہ وقت نہیں دے پاتا۔ اب بچہ ہے مدرسے میں بھی پڑھ رہا ہے، اور جب مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ سکول میں بھی ایڈمیشن لیا ہوا ہے، وہاں پر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ سکول سے آتا ہے تو بسا اوقات اس کو استاد جو ہے میسر نہیں ہوتا فعلی طور پر، استاد کہیں گیا ہوا ہوتا ہے، اوپر سر پہ امتحان آ جاتے ہیں، مختلف مشکلات ہیں پاکستان میں یا دوسرے جگہوں پر جہاں پر اردو زبان بولی جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش بھی ہے کہ ہم علم صرف، علم نحو، باقی علوم پڑھیں، تو ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم نے یہ برادر محترم کے تعاون سے مباحثہ کا آغاز کیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے طالب علم، شوق ہے، پڑھنا چاہتا ہے، امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے اور اس کو وقت نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں نیٹ ہر گھر میں عام ہو چکا ہے، ہر بندے کے موبائل میں نیٹ عام ہو چکا ہے، تو وہ کسی بھی وقت جب بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے کتاب اٹھائے، امثلہ کی ہے، شرح امثلہ کی ہے، صرف میر کی ہے، کوئی بھی کتاب اٹھائے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی جو درس، جو مباحثہ جہاں سے چاہے سننا چاہے، اس کے لیے وہ چیز نیٹ پر اویلیبل ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں لوگ دنیا میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر نیٹ کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ نیٹ، اس کے فوائد بھی ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اگر ہم اس سے مثبت فائدہ لینا چاہیں تو اس سے مثبت فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی میں کتابیں موجود ہیں، اسی میں فرامین موجود ہیں، اسی میں مجالس موجود ہیں، اسی میں ہر شے دنیا کی موجود ہے، فقط فرق یہ ہے کہ جو لینے والا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے کیا لینا ہے۔ تو آئے زیادہ دیر نہ ہو جائے، بالکل مختصر کرتے ہیں۔ آج کا پہلا مباحثہ ہے
किताबुल अमसला का मुबाहसा है इंशाअल्लाह। इसके बाद शरह अमसला का मुबाहसा होगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमारी और इसका एहतमाम करने वालों की और ये मुबाहसा सुनने वालों की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। किताबुल अमसला, ये लफ्ज़ अमसला जमा है मिसाल की, अमसला जमा है मिसाल की, ये बिल्कुल मुख्तसर है। इसकी जो शरह है वो शरह अमसला है, उसमें ज़्यादा बातें होंगी क्योंकि ये पहला मुबाहसा है, तो बिल्कुल मुब्तदी तालिब इल्म ही होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई ज़्यादा तशरीह वगैरह नहीं करेंगे, हम सिर्फ तर्जमे के ऊपर इक्तिफ़ा करेंगे। कहते हैं किताबुल अमसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिदा के मस्दर असल कलाम अस्त। कहते हैं कि तू जान कि मस्दर जो है ये कलाम की असल है, यानी ये मस्दर ही है। जिस मस्दर देखा जाए तो लुग़वी एतबार से भी कहते ही मस्दर उसको है जिससे कोई चीज़ निकले, जिससे कोई चीज़ सादिर हो, उसको क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। मस्दर असल कलाम अस्त, मस्दर जो है वो कलाम की असल है, यानी जितनी चीज़ें कलाम में हैं, जो भी कायदे हैं सर्फ के, उनकी सब की बुनियाद वो मस्दर ही है। वह आज़वी नह वजह बाज़मी गर्दद, और वो कहते हैं कि ये मस्दर एक ऐसी चीज़ है जिससे 9 चीज़ें निकलती हैं। मस्दर ऐसी चीज़ है जिससे 9 चीज़ें निकलती हैं, 9 चीज़ें निकाली जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मस्दर से निकलती हैं? माजी, मुस्तक़बिल, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, अम्र, नही, जहद, नफ़ी, इस्तिफ़हाम, ये 9 चीज़ें जो हैं ये मस्दर से निकलती हैं। इस वजह से मस्दर को असल कलाम कहा गया है कि ये मस्दर, अब दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि मस्दर असल है और ये 9 चीज़ें इसकी फ़र्क हैं। अब कहते हैं कि हमने कहा था कि मस्दर से 9 चीज़ें निकलती हैं। पहली जो चीज़ निकलती है मस्दर से वो है माजी। व अज माजी चहारदा वज बाज़मी गर्दद, और वो कहते हैं कि ये माजी जो है, अब इस माजी के 14 सीगे हैं, इस माजी से 14 सीगे, माजी 14 तरह का से आता है, माजी के 14 सीगे हैं। शेष मुगायब रबूद, 6 जो हैं इन 14 में से गायब के सीगे हैं। व शेष मुखातब रा, और 6 जो हैं ये हो गए मुखातब के। व 2 हिकायत नफ्स मुतकल्लिम रबूद, और जो 2 सीगे हैं वो हिकायत ख़ुद मुतकल्लिम की हिकायत के लिए आते हैं, यानी जो बंदा सीगा इस्तेमाल कर रहा होता है वो अपनी हिकायत कर रहा होता है। अब फ़ेल माज़ी के कितने सीगे हो गए टोटल? हमारे पास 14 सीगे। उन 14 में से 6 सीगे जो हैं वो गायब के हैं, 6 सीगे जो हैं वो मुखातब के हैं, और 2 सीगे जो हैं वो मुतकल्लिम के हैं। ये हो गया हमारे पास टोटल। व आन शिश के मुगायब रबूद, सेह मुज़क्कर रबूद, व सेह मुअन्नस रबूद, और वो 6 जो 14 में से पहले 6 गैब के सीगे थे, वो कहते हैं उन 6 में से 3 पहले सीगे जो हैं वो 3 मुज़क्कर गायब के सीगे हैं और 3 मुअन्नस गायब के सीगे हैं। यानी 14 में से पहले जो 3 सीगे इस्तेमाल होंगे वो 3 सीगे गायब मुज़क्कर के होंगे, और दूसरे जो 3 होंगे वो गायब मुअन्नस के होंगे। आन से है कि मुज़क्कर रबूद, और वो 3 सीगे जो मुज़क्कर के लिए आते हैं वो कौन कौन से हैं? कहते हैं ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ये 3 सीगे, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ये 3 सीगे किसके हैं? मुज़क्कर गायब, फ़ेले माजी मुज़क्कर गायब के ये 3 सीगे हैं। व आन से के मुअन्नस रबूद, और वो 3 सीगे जो फ़ेले माजी के हैं और मुअन्नस गायब के हैं, वो कौन से हैं? ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ये कितने सीगे हो गए हमारे पास? टोटल हमारे पास ये 6 सीगे हो गए। 3 मुज़क्कर गैब के, 3 मुअन्नस गैब के। जो 3 मुज़क्कर गैब के हैं ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, जो 3 मुअन्नस गैब के हैं ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना।
व आशिश के मुखातब रबूद सेह मुज़क्कर रबूद व सेह मुअन्नस रा। और कहते हैं कि वो जो 6 सिगे आपने कहे हैं, हमने कहे हैं कि 6 सिगे फ़ेल माजी के मुखातब के लिए आते हैं, वो कहते हैं फिर भी उसकी तकसीम है। उनमें से 3 मुज़क्कर के लिए हैं, मुज़क्कर मुखातब के लिए हैं, 3 मुअन्नस मुखातब के लिए हैं। वो 3 जो मुज़क्कर मुखातब के लिए, उनमें से जो 3 मुज़क्कर मुखातब के लिए हैं वो क्या है? आन से के मुज़क्कर रबूद, वो जो 3 मुज़क्कर के लिए हैं वो क्या है? ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम। व आन से के मुअन्नस रबूद, और वो 3 जो मुखातब मुअन्नस के 3 सिगे हैं वो क्या हैं? ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। व आन 2 के हिकायत नफ्स मुतकल्लिम रबूद, ज़रबतो, ज़रबना। और वो 2 सिगे जो हिकायत नफ्स खुद मुतकल्लिम कलाम करने वाले की हिकायत करते हैं वो कौन से हैं? ज़रबतो, ज़रबना। यानी अब अगर ख़ुलासा करना चाहें तो हम इस तरह ख़ुलासा कर सकते हैं कि फ़ेल माजी के टोटल जो हैं वो हमारे पास 14 सिगे हैं, जिनमें से 6 गैब के हैं, 6 मुखातब के हैं, 2 मुतकल्लिम के हैं। अब वो जो 6 गैब के हैं उनमें से 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं, और वो जो 6 मुखातब के हैं उनमें से भी 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं, और बाकी हमारे पास बच गए 2 सिगे, जो 2 सिगे मुतकल्लिम के हैं, जो हिकायत नफ्स मुतकल्लिम करने के लिए आते हैं। ठीक है। और व अज मुस्तकबिल नीज 4 दवज बाज़मी गर्दाद। वो कहते हैं कि जिस तरह फ़िअल माजी के 14 सिगे थे, कहते हैं कि मुस्तकबिल के भी 14 सिगे हैं, मुस्तकबिल के भी 14 सिगे हैं, 14 सिगों के साथ मुस्तकबिल भी आता है। बेअने ही वही तरतीब है। शेष मुगायब रबूद व शेष मुखातब रा व 2 हिकायत नफ्स मुतकल्लिम रा। इनमें भी वही है, फ़ेल मुस्तकबिल के जो हैं, फ़ेल मुज़ा जिसको मुज़ारे भी कहा जाता है, फ़ेल मुस्तकबिल के भी 14 सिगे हैं। इन 14 सिगों में से 6 गैब के सिगे हैं और 6 मुखातब के सिगे हैं और 2 मुतकल्लिम के सिगे हैं। कहते हैं आशिश के मुगायब रबूद सेह मुज़क्कर रबूद व सेह मुअन्नस रा। और वो 6 जो फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुस्तकबिल के 6 गैब के सिगे हैं, बेअने ही वो फ़ेल माजी वाली तरतीब है, फ़कत सिगे का फ़र्क है। कहते हैं कि जो फ़ेल मुज़ारे के गायब के सिगे हैं 6, उनमें से पहले 3 मुज़क्कर के हैं और बाद वाले 3 गायब में से वो मुअन्नस के हैं। आन से के मुज़क्कर रबूद, वो फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुस्तकबिल के मुज़क्कर गायब के 3 सिगे ये हैं, यज़रिबो, यज़रिबान, यज़रिबूना। व आन से के मुअन्नस रबूद, और फ़ेल मुज़ारे में से गायब के जो 3 मुअन्नस के सिगे हैं वो कौन कौन से हैं? तज़रिबो, तज़रिबान, यज़रिबना। व आन शिश के मुखातब रबूद, और वो जो फ़ेल मुज़ारे में से 6 सिगे मुखातब के हैं, सेह मुज़क्कर रबूद व सेह मुअन्नस रा। उनमें से भी 3 मुज़क्कर के सिगे हैं और 3 मुअन्नस के सिगे हैं। आशिश के मुज़क्कर रबूद, वो जो 3 मुज़क्कर के हैं, यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुखातब के जो 3 मुज़क्कर के सिगे हैं वो कौन कौन से हैं? तज़रिबो, तज़रिबान, तज़रिबूना। व आशिश के मुअन्नस रबूद, और वो जो फ़ेल मुस्तकबिल मुखातब के 3 मुअन्नस के सिगे हैं वो कौन से हैं? तज़रिबीना, तज़रिबान, तज़रिबना। व आन 2 के हिकायत नफ्स मुतकल्लिम रबूद, और वो जो 2 सिगे 12 सिगे हो गए हमारे पास, जो 2 सिगे फ़ेल मुतकल्लिम के हैं, मुस्तकबिल मुतकल्लिम के, वो कौन कौन से हैं? अज़रिबो, नज़रिबो। अब तकसीम देखें, बिल्कुल बेअने ही जिस तरह फ़ेल माजी की तकसीम थी उसी तरह फ़ेल मुस्तकबिल की तकसीम है। फ़ेल मुस्तकबिल के 14 हमारे पास सिगे हैं, कुल 14 सिगे हैं। इनको हम तकसीम करते हैं 3 तरह पे। पहली तकसीम में 3 है, 6 गायब के हो गए, 6 मुखातब के हो गए और 2 मुतकल्लिम के हो गए। अब जब ये 2 मुतकल्लिम के हो गए, ये तकसीम 3 हिस्सों में होगी हमारी। अब जो 6 गायब के हैं उनकी तकसीम 2 तरह की है, और जो मुखातब के हैं वो भी 2 तरह की है। जो 6 गायब की हैं उनमें से 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं।
और जो मुखातब के हैं उनमें से भी 3 मुज़क्कर के हैं और 3 मुअन्नस के हैं। जो 3 फ़ेल मुज़ारे गैब के मुज़क्कर के सीगे हैं वो क्या हैं? यज़रिबु, यज़रिबान, यज़रिबूना। फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुस्तक़बिल में से जो गैब के 3 मुअन्नस के हैं वो कौन से? तज़रिबु, तज़रिबान, यज़रिबना। ये 6 सीगे हमारे पास मुकम्मल हो गए किसके? फ़ेल मुस्तक़बिल गैब के। अब हमारे पास फ़ेल मुस्तक़बिल मुखातब के 6 सीगे हैं, वो फिर 2 तरह के हैं, 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के। जो 3 मुज़क्कर के हैं वो कौन कौन से? तज़रिबु, तज़रिबान, तज़रिबूना। और जो 3 मुअन्नस के हैं वो क्या हैं? तज़रिबीना, तज़रिबान, तज़रिबना। ये हमारे पास 12 सीगे हो गए। अब 2 सीगे हैं। अब जहन में आ सकता है क्योंकि है मुब्तदी तालिब इल्म है, बिल्कुल इब्तदाई है, कि फ़ेल माजी में भी फ़ेल मुस्तक़बिल में भी आपने ये कहा है कि जो गैब के हैं उनमें से 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। जो मुखातब के हैं उनमें से भी 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। फ़ेल मुतकल्लिम के जो हैं सीगे आपने वहाँ पर ये नहीं कहा कि वो 2 मुज़क्कर के हैं या मुअन्नस के हैं, उसमें यही होता है क्योंकि वो मुतकल्लिम के लिए दोनों सीगे इस्तेमाल होते हैं। वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है एक सीगा, एक जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब वहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस का सीगा क्या होगा? वो कहते हैं वहाँ पर जो होता है वो सीगा मुतकल्लिम का जो होता है वो ना मुज़क्कर के लिए मुख्तस हो सकता है ना मुअन्नस के लिए। वो देखा जाएगा कि जो मुतकल्लिम है, क्योंकि हमने कहा है कि वह मुतकल्लिम के सीगे हैं। मुतकल्लिम मतलब जो कलाम कर रहा है, जो सीगा इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर वो कलाम करने वाला, सीगा इस्तेमाल करने वाला मुज़क्कर है तो वो सीगा मुज़क्कर का माना दे रहा है, अगर मुअन्नस है तो वो मुअन्नस का माना देता है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अअलमो। अअलमो, अअलमो का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ, ठीक है। उअल्लिमो, मैं जनवाता हूँ, मैं तालीम देता हूँ। अब ये जो कह रहा है ना अअलमो, अगर वो मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर का माना दे रहा है, अगर वो मुअन्नस है तो ये सीगा मुअन्नस का माना देगा। आगे हमारे पास जो है हमारी बात जो है वो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल और बाकी फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, इन चीज़ों में है। इंशाअल्लाह अगले मुबाहसे में, क्योंकि आज का पहला ही मुबाहसा था हमारा, ज़्यादा भी मुबाहसा हमारा जो है वो तवील ना हो जाए, अगले मुबाहसे में इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे कि इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं, इसमें फ़ाइल के कितने सीगे हैं, इसमें मफ़ऊल के कितने सीगे हैं, फ़ेल अम्र के कितने सीगे हैं। इंशाअल्लाह बाकी मुबाहसों में जो है इंशाअल्लाह बहस होगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।